نہ ہم رول کو اس کے خلاف کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہو. ہمیں آج کے دن کی وساست سے عید پینتیکوست کے دن کو مناتے ہوئے آج ہمارا ٹاپک ہے رول کوس ہولی اسپرٹ. اور ہمارے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم دیکھیں گے چوتھی آیت تک. سب نکال لیجئے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. خدا کا کلام یوں فرماتا ہے, کلام لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری, اور وہ سب روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. سب بولے آمین. خدا کا کلام جب ہم دیکھتے ہیں تو روح القدس اس بالا خانہ میں جب اس کا نزول ہوتا ہے تو وہاں شاگرد بھی ہیں اور اس کے ساتھ مقدسہ مریم بھی موجود ہے, لیکن جب وہ خدا کا کلام روح القدس کی صورت میں ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہاں ایک ایسا منظر ہے کہ لوگ ان کو جب بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کی زبانیں بولتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ہماری زبان بولتا ہے, کوئی گلیل کا ہے تو وہ کہتا ہے یہ گلیل کی زبان بولتا ہے. خداوند کا روح القدس جب ہمارے دماغ پر ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہمیں ہر وہ بات جو خدا کے کلام میں سے ہے ہمیں ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے وہ میرے لیے بولتا ہے. کہ جب ہم مختلف کلیسیوں میں جاتے ہیں تو وہاں جب کلام کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ آج کا کلام جو تھا یہ میرے لیے تھا. کلام تو سب کے لیے تھا, لیکن کوئی خاص بات اس کلام میں ہوتی ہے جو کہ اس آدمی کے لیے, اس بہن کے لیے, اس بیٹی کے لیے, اس بھائی کے لیے اس کی طرف یعنی کہ اشارہ کرتی. جب ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں, جب ہم اس کے متعلق دیکھتے کہ روح القدس ہے کیا, اس کے معنی دیکھتے ہیں, اس کے مطلب کو بھی دیکھیں گے, اس کی اہمیت بھی دیکھیں گے, اس کی خوبیاں بھی دیکھیں گے, اور اس کو جو لقب دیے جاتے ہیں اس پر بھی ہم غور کریں گے. جب ہم دیکھتے کہ خدا کا روح یعنی روح القدس انگلش میں جس کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں, جب ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کے 2-3 پوائنٹ ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلا ہے کہ یونانی میں اس کو کیا کرتے ہیں, یونانی میں اس کو نیومیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ جس کے معنی ہے سانس, آندھی یا ایسی قوت جو نظر نہ آئے, جہاں تو ہم سانس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم آندھی کو دیکھ سکتے ہیں, ان دونوں چیزوں کا ہم محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے اس کو جب ہم روح کا نام دیتے ہیں, روح بھی کہتے ہیں, پانی بھی کہتے ہیں, آگ بھی کہتے ہیں, مہر بھی کہتے ہیں. لیکن جب ہم تھوڑی سی تفصیل کو آگے دیتے ہیں کہ اس کی تشبیہات میں یہ شامل ہے, روح ہے, پانی ہے, آگ ہے. ہم کہتے ہیں خدا کا روح القدس آپ کی صورت میں آئے. جب ہم پانی پر دیکھتے ہیں خدا کا روح القدس پانی پر جنبش کرتا ہے. جب ہم پرانے عہد کو دیکھتے ہیں تو روح القدس کا بیان وہاں بھی ہے. کہتے جب دنیا نہیں تھی تو خدا کا روح القدس پانی پر جنبش کرتا تھا. وہ کیوں جنبش کرتا تھا؟ اس لیے جنبش کرتا تھا کہ وہ ڈھونڈتا تھا اپنے لوگوں کو کہ میرے لوگ کدھر ہیں. حالانکہ اس نے انسان کی کریشن خدا نے کی, لیکن پھر بھی وہ ڈھونڈتا ہے
कि लोगों को रूल कुछ के जरिए कलाम सुनाया है। लेकिन जब योएल नबी की किताब को हम देखते हैं तो वहाँ भी रूल कुछ का बयान किया गया, वहाँ भी बयान है। और रसूलों के अमाल को भी जब देखते हैं वहाँ भी इसकी काफ़ी स्टडी, हम जब रसूलों के अमाल को पढ़ते हैं तो काफ़ी तफसील के साथ रूल कुछ के मुतल्लिक़ बातें लिखी हैं। लेकिन आज हम देखेंगे इसका मानी और मतलब हमने देखा, लेकिन जब हम इलाही तौर पर देखते हैं तो इसकी तशबीहात जो इब्ने आदम के साथ दी गई हैं वो इस तरह है जैसे कि बरक, चट्टान, शेर वगैरह। इन तमाम को इब्ने आदम के साथ जोड़ा गया है। जब हम इसकी तशरीह को पढ़ते हैं तो फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। जब हम अहमियत देखते हैं और इसके जिक्र का जब जिक्र देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में जब हम पुराना अहदनामा देखते हैं तो 90 दफ़ा उसमें रूह कुद्स का जिक्र, और जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो तकरीबन उसमें 260 दफ़ा इसका जिक्र आया। लेकिन जब हम इसके मुताबिक पढ़ते हैं योएल नबी की किताब में भी यही बात है और रसूलों के अमाल में भी उसकी थोड़ी हट कर तशरीह की गई है कि यहाँ जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि देखते हैं हम पैदाइश से लेकर जब हम मुकाशफा तक तशरीह कर देखते हैं तो इसकी तख्लीक का जिक्र किया गया है। मैं अब सुबह जब पढ़ रहा था तो मुकाशफा की किताब में रूह कुद्स के मुतल्लिक़ थोड़ी बहुत बातें थी, लेकिन हम रसूलों के अमाल में बड़ी तफसील के साथ इसका बयान किया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कहते कि रूह जब जुम्बिश करता था तो पानी हिलता था, और जब वो हिलता था तो पता चलता कि रूह कुद्स यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ हम इसकी जब खूबियों को देखते हैं तो मेरे सामने निकालिए रोमियो 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ देखते हैं हम रूह कुद्स की नीयत को देखते हैं, रूह कुद्स के मजाज को देखते हैं, उसका मजाज क्या है, उसकी नीयत क्या है। जब हम यहाँ देखते हैं तो खुदा के कलाम में 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, लिखा है और दिलों का परखने वाला वो जानता है कि रूह की क्या नीयत है। यहाँ वो कहते थे दिलों को परखने वाला, यानी कि रूह कुद्स जानता है कि उसकी नीयत क्या है। क्या नीयत है उसकी? क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। क्या करता है? शिफायत करता है, सिफारिश करता है। हम कई दफा अनजाने में बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें याद ही नहीं रहती। कोई हमें कहते कि आपने ये बात कही थी, आपने ये गलत बात कही थी, हम मुकर जाते हैं। मुकर नहीं जाते बल्कि हम भूल जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह करके हम जल्दी भूल जाते हैं, और बातें हमें बहुत याद रहती हैं। लेकिन हम जब गुनाह करते हैं तो वो बड़ी जल्दी हम भूल जाते हैं ताकि हमें पता न चले, अगले बंदे को पता न चले। लेकिन खुदा का रूह कुद्स जगह मौजूद, वो हमें देखता है, वो हमारे साथ बातें करता है। लेकिन यहाँ देखिए तो उसकी नीयत, उसका मजाज क्या है कि वो हमारे लिए शिफायत करता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा मजीद इसको देखना चाहें तो पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 10 आयत से लेकर 13वीं आयत में बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अपने घर में जाकर तफसील से देख सकते हैं कि वहाँ उसका मिजाज, उसकी नीयत क्या है, कि रूह कुद्स क्या करता है। आगे जब हम देखते हैं जब उसकी मर्जी और उसकी तकसीम वो किस तरह यानी कि बांटता है, उसकी मर्जी क्या है। खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत खुदा के कलाम में से देखते हैं, मेरे साथ निकालिए। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, लेकिन ये सब तासीरें कोई एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांटता है। हालेलुया। जिसको वो चाहता है
लेकिन वो उस तरफ उस वक्त ही चाहता है जब हम खुदावंद के साथ फरमाबरदार, हम उसके हुक्मों पर चलते, फिर वो हमें बहुत सी नेमतों और बरकतों से नवाजता है। तो कलाम में लिखा है जब तुम तौबा करते हो, खुदा की माफी मांगते हो, तो इनाम में क्या चीज मिलती है? एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, जिसके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि इसको गिरफ्तार कर सकता, बल्कि खुदा का रूह हमें वो खुशी, वो नेमत और बरकत देता है जिससे हम खुश हो। लेकिन जब हम आगे जाकर देखते हैं थोड़ा सा कलाम में से, रोमियो 8वां बाब उसकी 26 आयत में जज्बात के बारे में हम देखते हैं कि उसके जज्बात क्या हैं। जब हम उसके जज्बात को देखते हैं, उसके मुतल्लिक जब हम गौर करते हैं कि उसके जज्बात हमारे लिए क्या है, खुदा के कलाम में से निकालिए मेरे साथ रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसके जज्बात को हम देखना है कि जब वो हमारे लिए दुआ करता है, हमारे लिए महसूस करता है, तो क्या होता है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह को पता होता है जब हम दुआ कर रहे हैं हम कमजोर हैं, इसलिए कि हम इंसान कमजोर है, किसी बात में खता कर जाता है। कई दफा हम बातें करते हुए खुदा के खिलाफ, खुदा की बातों के खिलाफ चलते हैं, लेकिन रूह कुछ हमें संभालता है, हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें जब हमारी कमजोरी में कहते हैं मदद करता है। क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। कहते हैं कि जब खुदा का रूह कुछ आता है तो फिर हमारे लफ्ज जो हैं वो पूरी तरतीब में आ जाते हैं। कई दफा हम जब कलाम पेश करते हैं हमारे पास तैयारी कुछ और होती है, लफ्ज कुछ और लिखे होते हैं, लेकिन खुदा का रूह कुछ हमें ऐसे अल्फाज देता है जो जब हम कलीसिया के लोगों से सुनते हैं तो कहते हैं पास साहब किसी तैयारी क्या, लेकिन वो सिर्फ रूह कुछ देता है। इसलिए कि हम रूह कुछ के मुवाफिक जब चलते हैं तो फिर रूह कुछ हमें संभालता है, हमारी मदद करता है। और आगे जाके हम देखते हैं, कहते हैं कि दुआ करना चाहिए, हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता, इनके हम बयान नहीं कर सकते। कई दफा आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था पास्टर बहनी की, वो स्टेज पर लेट गया और लेट कर रो रहा है हिचकियों के साथ, जैसे आहें भर भर के लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो मैं वीडियो में देख रहा था, वो कहते आहें भर भर के वो रो रहा है क्योंकि रूह उसको सब कुछ बता रहा था कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी। लेकिन जब हम रूह उसके साथ चलते हैं तो फिर ही हमें वो संभालता है। अगर हम कई दफा रूह उसकी बातों को कई लोग मजाक समझते हैं, जैसे जब हम रसूलों के माल से आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि लोगों ने कहा इन्होंने नशा किया हो, ये नशे की हालत में बोल रहे हैं। लेकिन वहां बहुत अच्छी बात पतरस का पैगाम है, पतरस बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाता है कि ये खुदा का रूह कुछ, इन्होंने कोई शराब नहीं पी, इन्होंने कोई नशा नहीं किया, ये खुदा का रूह उसकी कुदरत से बोल रहे हैं और हर एक को उनकी समझ आ रही है और हर एक हैरान है कि मैं तो वहाँ काफी कौमों का जिक्र है, जुबानों का जिक्र है, जुबान को कहते हैं ये मेसोपोटामी वाले वो कहते हैं हमारी जुबान को, वहाँ काफी लोगों की, लेकिन खुदा का रूह हमें संभालता है। लेकिन जब हम इसके अलकाब की तरफ देख रहे हैं, इसके लक़ब के साथ लफ्ज़ क्या लगाए जाते हैं, 3-4 लफ्ज़ मैं आपको बताऊँ। शिफायत करने वाला, मदद करने वाला, मददगार, और कहा है साथ खड़े होने वाला, नबूवत वाला, भेद और राज की बातें बताने वाला, ये इसके अलकाब में शामिल है, इसके लक़ब में। कुछ तो है लेकिन उसके साथ हम मददगार अलकाब के तौर पर बताएं, भेद देने वाला, राज बताने वाला। लेकिन मेरे भी तो जब हम पुराने और नए में देखते हैं तो ज्यादातर इसका
जो जिक्र है वो नए अहदनामे में। पुराने अहदनामों में कई जगह पर ये भी है कि एक मखसूस तबके के लिए था कि एक मखसूस तबका है वही रूल कुछ को बोल सकता है, रूल कुछ ले सकता है। लेकिन जब हम करते हैं हर बशर, हर एक के लिए, बेटियों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, यानी बड़ों के छोटों सब के लिए कहा गया कि हर एक इस रूल कुछ को लेगा। और जब रूल कुछ मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, निजात। रूल कुछ ही हमें बीमारियों से, परेशानियों से बचाता है। लेकिन मेरे जीवन जब हम रूल कुछ के साथ चलते हैं तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नेमतें मिलती हैं, बहुत से फल मिलते हैं। कितने फल है कलाम में दर्ज है? कितने फल है? 9 फल, 9 फ्रूट्स। जिसका हम गलतियों, जैसा हम करें गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह के फल हैं। और आज हमें सोचना है कि 9 फलों में से कितने फल हमारे अंदर हैं और कितने फल हमें और चाहिए। अगर हमारे पास 8 है तो हमारा 1 फल और हमें चाहिए। अगर 7 है तो हमें 2 और चाहिए। यहाँ हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए खुदा का कलाम, गलतियों 5वां बाब उसकी 22 और 23 आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म। ये हिल्म क्या आता है? हिल्म तो चलो हाँ, तो हिल्म क्या? हलीमी होती है। हलीमी के साथ हमें खुदावंद के साथ चलते। फिर आगे लफ्ज़ है परहेजगारी। परहेज के बीमार बंदे नूं दाते आम बंदे नूं केड़ा परहेज आ गया। यहाँ हम देखते हैं परहेज, गुनाह, बदी, बुग़्ज़ और ऐसी बातें जो खुदा के रूह को उसको तंग करती हैं, नापसंद है। इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना है। अगर ये 9 फल हमारी जिंदगी में मौजूद हैं तो फिर हम रूल कुछ के साथ चलेंगे। रूल कुछ हमारी मदद भी करेगा, रूल कुछ हमारी रहनुमाई भी करेगा, रूल कुछ हमें हमारी शिफायत भी करेगा। लेकिन हम जब रूल कुछ के साथ ही नहीं तो फिर शिफायत कौन करेगा? वैसे तो उसने वादा किया और मैं बाप के दाहिने हाथ बैठा हूँ ताकि तुम्हारी क्या करूँ, शिफायत करूँ। लेकिन उस शिफायत को हासिल करने के लिए दिल के ताबिया होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा के कलाम में एक बहुत अच्छी बात देखी है गलतियों का। अब ये हमारे साथ निकाले जरा, गलतियों 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। हमें दुनियावी जिंदगी गुजारनी है या रूहानी जिंदगी गुजारनी है। अगर हम रूहानी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या है? जब हम दुनियावी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट क्या है? कलाम को गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर तलब बात है। ये लिखा है खुदा के कलाम में, जो कोई जिस्म के लिए होता है वो जिस्म से हलाकत की फसल को काटेगा। जिस्म की क्या मतलब? जिस्म के लिए क्या? जिस्म तो हमारा बना, कौन सी इसको गोंडी देनी है, पानी डालना है, खाद डालनी है, क्या चीज? जिस्म के लिए हम क्या करते हैं? जिस्म की हमारी वो ख्वाहिश, दौलत, दुनियावी इज्जत, लालच, गुनाह और बेईमानी और एक दूसरे के खिलाफ गलत प्लान, ये हमारी जिस्मानी फसल है जिसको हम बोते हैं। लेकिन जब काटते हैं तो क्या होता है? हलाकत होती है, शर्मिंदगी होती है, गुनाह की वो जो भट्टी बनी हुई है उसमें जलना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर हम इसका अगला हिस्सा देखते हैं, लिखा है और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की क्या करेगा? फसल काटेगा। जरूरी नहीं है कि क्रांति के साथ हम उस फसल को काटे, लेकिन हम आम जुबान में भी, आम लफ्ज में भी, आम महफिलों में भी, आम किसी ग्रोह में भी बैठ कर कहते हैं कि आज जो कुछ होना है आगे जाकर वही काटना है। एक छोटी सी बात जाते शेयर करूं, कोई इंसान था जब वो जमीन पर रहता था तो बहुत अमीर आदमी था, हर तरह की ऐशो इश्रत, यहाँ तक कि पानी
खाना खाना है तो एक जगह बैठा, नौकर चाकर हर चीज वहां पहुंच चुकी। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो बड़ा खुश है अपनी जिंदगी में कि जब मैं मर के जब ऊपर हिसाब के लिए जाता है तो देखता है दुनिया है, खूबसूरती है, सारा कुछ है। लेकिन जब हिसाब का वक्त आता है तो वो तो अपनी जगह पर ठीक था, क्योंकि दुनिया में उसने कुछ दुख नहीं देखा, सहूलत ही सहूलत देखी। लेकिन जब वहां बैठा है, खुदा के फरिश्तों को हुक्म मिलता है कि इस इंसान को आगे लाया जाए ताकि इसका मुकाम इसको बताया जाए। लेकिन जब उसको पकड़ते हैं तो कहते हैं कि इसको इसके देश में, इसके वतन में, इसके घर में छोड़ दो। वो पकड़ते हैं तो आगे जब जाते हैं सोने के महल बने हुए हैं, बड़ा खुश होता है, कहता है सोने की प्लेटों में खाया तो सोने के घर में रहूंगा। वो वहां रुकता है तो कहते नहीं यहाँ नहीं, तेरा घर आगे। वो आगे जाता है तो वहाँ चांदी के और भी यानी कि उससे कम होते जाते हैं, सोना चांदी, फिर आगे कोई और कोई धात को ऐसे करके। लेकिन एंड पे जब जाता है तो बड़ी गंदी सी जगह होती है, पर वो आ रही है तो उनको कहता है यार मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, दिल तो तबीयत खराब है। कहते नहीं आप हमने आगे जाना है, तो कुछ होता तो हो सकता आगे और जाओ। लेकिन जब वो आगे जाता है तो उससे भी बुरी जगह होती है, वहाँ बहुत डरावनी जगह, बदबू गंदी जगह, और वो उसको पकड़कर एक कमरे में फेंक दे। तो वो कहते हैं ये मुझे कहाँ फेंक दे? उसने कहा कि जो तुझे दुनिया में दिया है उसका फल दे। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जमीन पर मेरा इनकार करोगे तो मैं आसमान पर अपने बाप के आगे, लफ्ज वाज़ह तौर पर कहा है, अपने बाप के आगे तुम्हारा इनकार करूंगा। लेकिन जब खुदा का कलाम लिखा है जब एक रूह अपना तौबा करती है, खुदावंद के अपने गुनाहों का इकरार करती है, तो कितने फरिश्ते? 2-3 हजारों फरिश्तों की बात। हालेलुया। अगर हमें वो क्रेडिट लेना है कि हजारों लोग हमारी तारीफ करें, जहां भी ऐसे ही, जमीन पर भी ऐसे, हम चाहते हैं कि कोई भी मुआशरे का बंदा, जिस मुआशरे में भी हम रहते हैं, हर बंदा हमारी तारीफ करे। तो हमें दुनियावी तौर पर भी यीशु मसीह के कामों पर अमल करना है। इस जमीन पर रहते हुए उन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारी, क्योंकि जिंदगी जब देखें तो उसका दुरानिया बहुत थोड़ा है। अगर वो 50 साल 100 साल इस दुनिया में रह जाते तो क्या कोई और लोग होते? सब मसीही लोग होते। हालेलुया। लेकिन आज भी खुदा का शुक्र है, जितने थोड़े वक्त में एक उन्होंने तबलीग की, बिशारत दी, उसके साथ आज भी क्रिश्चियनिटी का जो फिगर है वो सबसे ऊपर है। तो आज हम रूल कुछ के मतलब देखते हैं कि ये वही रूल कुछ है जो हमारा मददगार, जो हमारी हिफाजत करता है और हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। हमें अपने किरदार, अपनी बातें, अपने कामों से उसके जलाल को जाहिर करना है। तो उसका रूल कुछ, अगर हम उसके रूल कुछ की मदद चाहते हैं तो हमें रूल कुछ के मुताबिक उन फलों के साथ जो किताब में हमने पढ़ा, हमें जिंदगी गुजारना चाहिए। तो आज हम इस्लाम के वसीले से हम सबको